Hello friends, today we have to discuss about one experiment, that is a moment of inertia of flywheel. Name of our experiment is to determine the moment of inertia of flywheel about a given axis of rotation. This flywheel is mounted on the wall mount supports. This flywheel is rotated about a given axis which is passing through its center and perpendicular to the plane of flywheel. सबसे पहले देखो कि यहाँ पे what is flywheel? Flywheel क्या है? Flywheel is nothing but it is a wheel which maximum mass is concentrated or distributed on its rim, that is on its circumference. तो उसका मास जो है वो पूरा का पूरा circumference पे, रिम पे concentrate होता है, ज्यादा से ज्यादा मास, so that its moment of inertia is greater. तो flywheel का moment of inertia ज्यादा रहता है. We have to determine the moment of inertia of flywheel about a given axis. इसके लिए हमको जो apparatus चाहिए वो apparatus देखो, apparatus flywheel, hanger with weight. This is flywheel, this is hanger with weight, thread, this is thread which is wound on the axle of the flywheel so that the flywheel can be revolved or rotated about a given axis. तो ये थ्रेड है जो हम यहाँ पे वाउंड करते हैं एक्सल पे, और एक्सल पे वाउंड करने के बाद में जैसे वेट नीचे आता है तो ये फ्लाईव्हील रोटेट होने लगता है. मीटर स्केल वी हैव टू measure the height from axle to the ground by using meter scale, and this height is h. Vernier caliper, we have to measure the radius of the axle, and that is r, by using vernier caliper. Stopwatch, we required one stopwatch to measure the time required to number of rotations of the flywheel, etc. These are the apparatus that we have to use in this experiment. तो यहाँ पे ये apparatus है. उसके बाद में formula for moment of inertia of flywheel is given by, moment of inertia of flywheel is denoted by I. Capital I is equals to m divided by n1 plus n2 in bracket GHT square divided by 8 pi square n2 minus n2 into r square, bracket complete. This moment of inertia is in CGS unit. Gram centimeter square is the unit of CGS unit of moment of inertia. ये वैल्यू जो है वो CGS यूनिट में रहेगी. इसका मतलब है मास लेना है वो ग्राम में लेना है, हाइट या डिस्टेंस लेना है वो सेंटीमीटर में लेना है. तो दैट इज अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील. Again, one consideration is there. If we consider the approximation, neglecting energy acquired by the mass m, and n2 is much greater than n1. n2 क्या है, n1 क्या है, ये देखेंगे हम. तो n2 अगर n1 से बहुत ज्यादा है और energy acquired by the mass is neglected, then this formula becomes I, moment of inertia of flywheel, I is equals to mght square divided by 8 pi square n2 square. वैल्यू कैलकुलेट होगी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इन CGS यूनिट. तो यहां पे देखो कि कैपिटल I be the moment of inertia of flywheel, m be the mass attached to the hanger, this is m, r be the radius of axle, we measure the radius by using vernier caliper, h be the distance between axle and ground, axle से ground का जो distance है, by using meter scale we have to measure it. मीटर स्केल से हम ये distance measure करेंगे. n1 be the, ये जो n1 है, n1 be the number of revolutions made by the flywheel
बिफोर मास डिटैच फ्रॉम द फ्लाईव्हील। ये जो मास यहां पे है, जैसे ही यहां पे मास नीचे आने लगेगा फ्लाईव्हील स्टार्ट रोटेटिंग। तो फ्लाईव्हील के नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमको मेजर करना है जब तक मास यहां से फ्लाईव्हील से डिटैच नहीं हो जाता। मास यहां पे नीचे आएगा, थ्रेड पूरा नीचे आने के बाद में डिटैच हो जाएगा। डिटैच होने के बाद में, डिटैच होने तक नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन रहेंगे n1, और डिटैच होने के बाद में हमको और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंटिन्यू करना है, वो मेजर करना है। डिटैच होने के बाद में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन रहेंगे n2 टिल द फ्लाईव्हील स्टॉप रोटेटिंग। फ्लाईव्हील जब तक रेस्ट पोजीशन पे आता है उस वक्त तक हमको ये n2 number of rotations measure करना है। So n2 be the number of revolution made by the flywheel before comes to rest after the mass detach। mass detach होने के बाद में रेस्ट होने तक n2 मेजर करना है हमको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। t be the time taken by the flywheel for n2 revolution। n2 रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम लगता है वो t है। n1 के लिए हमको टाइम नहीं मेजर करना है, n2 के लिए टाइम मेजर करना है। g be the acceleration due to gravity at a place, and we know that the value of acceleration due to gravity is 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको यहाँ पे CGS यूनिट लेना है, सो हम यहाँ पे g की वैल्यू लेंगे 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ we discuss about the procedure follow in that experiment, then observations, observation table and then result। तो हमको देखना है कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करना है, हाउ टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। तो प्रोसीजर में फर्स्ट पॉइंट देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, अटैच मास m से 100 ग्राम with the help of hanger to one end of the thread and loop is made at the other end of the thread which is hang to the nail attached to the axle। तो हमको क्या करना है यहाँ पे कि वन एंड ऑफ थ्रेड, एक जो एंड है उसको हमको हैंगर जहां पे हम वेट अटैच करेंगे वो अटैच करना है, दूसरे थ्रेड के एंड को हमको एक नेल अटैच करना है, जो नेल एक्सल में एक होल रहेगा उसमें अटैच करना है। वाउंड द थ्रेड ऑन द एक्सल ऑफ द फ्लाईव्हील बाय रोटेटिंग द व्हील सो दैट द हैंगर ऑफ मास m मस्ट रीच एट द लेवल ऑफ द एक्सल। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे फ्लाईव्हील को रोटेट करना है, एक्सल रोटेट होगा और उस एक्सल पे ये जो थ्रेड है वो वाउंड होगा, हैंगर ऊपर जाएगा, हैंगर यहाँ पे एक्सल तक पहुंच जाना चाहिए, ऐसे उसको थ्रेड को वाउंड करना है। नाउ अलाउ द मास टू डिसेंड स्लोली एंड काउंट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस n1 ड्यूरिंग द डिसेंट। उसके बाद में हमको क्या करना है कि मास को नीचे जाने के लिए अलाउ करना है, छोड़ देना है, सो दैट द मास इज डिसेंड। मास नीचे नीचे आएगा, मास जैसे यहाँ पे ग्राउंड की तरफ जाने लगेगा वैसे यहाँ पे जो थ्रेड है एक्सल पे वाउंड हुआ है वो थ्रेड एक्सल को रोटेट करने लगेगा। एक्सल रोटेट होगा तो फ्लाईव्हील इज रोटेटेड, एंड फ्लाईव्हील जब रोटेट होना स्टार्ट होगा तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन n1 हमको मेजर करना है, काउंट द नंबर ऑफ रोटेशन n1। तो हमको पहले n1 नंबर ऑफ रोटेशन काउंट करना है, जब यहाँ पे थ्रेड डिटैच हो जाएगा तब तक यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशन रहेंगे n1। When the thread is unwound itself and detached from the axle, start the stopwatch and simultaneously count the number of revolutions n1। यहाँ पे टाइम भी मेजर करना है और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन n2 भी मेजर करना है। जब यहाँ पे थ्रेड डिटैच हो जाएगा फ्लाईव्हील के एक्सल से तो हमको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन n2 स्टार्ट करना है, n2 भी मेजर करेंगे, हम काउंट करेंगे और उसके बाद में
N2 के लिए जो टाइम लगेगा टिल द फ्लाईव्हील इज अ स्टॉप, तो N2 के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम भी कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस भी कैलकुलेट करना है. टाइम रहेगा T, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस रहेंगे N2. रिपीट द एक्सपेरिमेंट विथ 3 और 4 डिफरेंट मासेस. तो ये पूरी प्रोसीजर जो है वो 2-3 मास के लिए पहले हम 100 ग्राम अटैच करेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा वेट बढ़ा देंगे, उसके बाद में और वेट बढ़ा देंगे, ऐसे 3-4 रीडिंग लेना है डिफरेंट वेट के लिए. With the help of vernier caliper, measure the diameter of the axle and hence calculate the radius of the axle. तो हमको यहाँ पे वर्नियर कैलिपर से डायमीटर मेजर करना है एक्सल की, उस पर से हमको रेडियस मिल जाएगी सेंटीमीटर में. मेजर द डिस्टेंस h थ्रू विच द मास फॉल्स डाउन. तो हमको यहाँ पे डिस्टेंस h मेजर करना है एक्सल से ग्राउंड का डिस्टेंस. बाय यूजिंग मीटर स्केल वी कैन मेजर द डिस्टेंस h. तो हमको मीटर स्केल से यहाँ पे एक्सल से ग्राउंड तक डिस्टेंस मेजर करना है, दैट इज h. ऑब्जर्वेशंस. डिस्टेंस बिटवीन एक्सल एंड ग्राउंड इज h. इट इज इन सेंटीमीटर. बाय यूजिंग मीटर स्केल वी हैव टू मेजर इट. सेकंड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ N1, N2 एंड T. हम डिफरेंट मासेस के लिए यहाँ पे N1 मेजर करेंगे, N2 मेजर करेंगे और N2 के लिए जो टाइम लगता है वो भी टाइम भी मेजर करेंगे. तो पहले वेट लेंगे सपोज 100 ग्राम, उसके बाद में 150 ग्राम, उसके बाद में 200 ग्राम एंड 250 ग्राम. तो ये डिफरेंट वेट के लिए हमको N1 मेजर करना है. N1 क्या रहेगा, स्टार्टिंग से नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेजर करना है. जब स्पीड 0 रहेगा फ्लाईव्हील का तब से यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करना है. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अप टू द मास डिटैच फ्रॉम द एक्सल और फ्लाईव्हील. N1 रहेगा. N2 रहेगा नंबर ऑफ रोटेशन और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बिफोर द फ्लाईव्हील कम टू रेस्ट आफ्टर द मास डिटैच फ्रॉम द फ्लाईव्हील. जब यहाँ पे फ्लाईव्हील से मास डिटैच होगा वहां से हमको N2 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस काउंट करना है और साइमल्टेनियसली उसका टाइम भी मेजर करना है बाय यूजिंग स्टॉप वॉच. तो ये हमको यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस का और टाइम का टेबल मिल जाएगा. उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ, आफ्टर दैट मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ एक्सल. So by using vernier caliper we have to measure the diameter of the axle, and by using this diameter we can calculate radius of the axle in centimeter. Now ये पूरे कैलकुलेशन हमारे पास में है अभी. Now by using these all quantities and this quantity used in the formula we can calculate or determine the moment of inertia of flywheel is found to be ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपको मिलेगी. यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए अलग, सेकंड रीडिंग के लिए अलग, थर्ड रीडिंग के लिए अलग, फोर्थ रीडिंग के लिए अलग मिलेगा. उसका एवरेज मीन निकालना है आपको और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लाईव्हील की वैल्यू लिखनी है जो CGS यूनिट में रहेगी, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील अबाउट इट्स ओन एक्सिस. थैंक यू.